the realm of autocross, where passion meets precision, there exists an extraordinary individual who has left tire marks on the hearts of enthusiasts nationwide. Meet Achintya, a force to be reckoned with, a living testament to the power of determination and unwavering belief in oneself. Born from a moment of inspiration, Achintya's journey began when he witnessed his younger brother take the wheel and soar with unmatched confidence. In that very instant, a fire ignited within him, whispering the words, "If he can, then why can't I?" And so, armed with a stock Suzuki Wagoner, Achintya embarked on a path that would redefine his life and leave an indelible mark on the motorsport community. With each twist of the steering wheel, Achintya sought to unravel the secrets of his vehicle. He studied its mechanics, meticulously fine tuning every component to unlock its hidden potential. In this symbiotic relationship between man and machine, he discovered his own unique driving style, a fusion of finesse, precision, and unyielding determination. But Achintya's ascent was not without its share of hurdles. The skeptics and critics, unable to fathom his relentless pursuit of victory, cast shadows of doubt upon his path. Yet, with an unwavering focus, he channeled their skepticism into fuel for his ambitions, rising above the noise and defying the odds. Today, Achintya stands as a true icon of the autocross world, adorned with a staggering collection of 195 trophies, a testament to his unparalleled skill and sheer perseverance. His fleet of cars, lovingly christened Machacat, Turbocat, and the spirited Tai Tai Ignis, bear witness to his unwavering dedication and personal touch. Each vehicle an extension of his passion, carefully honed to match his driving prowess, has graced numerous podiums, leaving spectators awestruck. Achintya's story is one that resonates deeply within all of us, a testament to the power of dreams, the strength of character, and the relentless pursuit of greatness. It serves as a reminder that in the face of adversity, with unwavering determination and a burning passion in our hearts, we too can defy expectations and conquer the uncharted. Join us as we delve into the world of Achintya, peeling back the layers of his extraordinary journey, prepared to be inspired, motivated, and captivated by a man whose tireless pursuit of excellence has become a driving force for all who aspire to make their dreams a reality. टेल मी अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट योर जर्नी. लिटिल तो नहीं, पूरी डिटेल में बता. तूने कहाँ से शुरू किया, कहाँ से तेरे को एक चस्का लगा, कहाँ से तुम मोटर स्पोर्ट्स में शिफ्ट हुआ? तो ऐसा था कि आई हैड अ वैगनर, okay, and I started learning driving the WagonR itself back in 2008, I guess. Okay. So considering the age for entering motorsports, that was quite late. It was 17 and a half years when I started driving. Okay. And the reason for driving is that I was going to my training institute, okay, and I saw my brother driving a WagonR within the society only. So just gate से हम लोग enter कर रहे थे ना, तो मैं यहाँ से हम रैम्प से गाड़ी लेके जा रहे थे, मैं ड्राइवर के साथ बैठा था, इधर से मेरा भाई गाड़ी चलाना सीख रहा था WagonR. मैंने कहा ये चलाना सीख रहा है और मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती. How old was your brother? He was younger than you. Yeah, 2 years. Okay. तो मैंने कहा यार ये तो सही नहीं है. तो आई सेड ड्राइवर को कि भाई देख, अब तेरा काम है कि तुझे गाड़ी चलानी सिखानी पड़ेगी मुझे. ठीक है भैया जी. उस टाइम आर के पुरम डीपीएस एंड फिट जी वगैरह जाते थे, अपना एलपीएस लक्ष्मण पब्लिक स्कूल. ठीक है. तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने सड़क पे चलाना स्टार्ट करी गाड़ी. एंड विद इन 2-3 डेज, मतलब जो मेरे ड्राइवर ने भी मेरे को बोला था कि आपका सर स्टीयरिंग पे जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा है. तो मतलब मेरे को फीडबैक ना शुरुआत से समझ में आ पा रहा था. उसने ये नहीं बोला कि अच्छा है, उसने बोला बहुत ज्यादा अच्छा है. हाँ, जरूरत से ज्यादा अच्छा है. एंड सेकेंड डे पे, हाँ, मतलब अभी तो जहाँ पे ये मेरठ का रैपिड ट्रांजिट चल रहा है, ये पूरी 2 किलोमीटर की सड़क होती थी. हाँ, राइट. ठीक है. एंड ओनली 2 cars can right. So I used to practice over there from standstill, and second third day पे मैं वो burnouts लगने स्टार्ट हो गए थे. ठीक है. मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. एंड ड्राइवर ने बोला कि आप गाड़ी को 6,000-6,500 आरपीएम तक भी लेके जा सकते हो. ऐसा ड्राइवर ने बोला? ऐसा ड्राइवर ने बोला था. Okay. तो मैंने कहा कि ठीक है भाई. वहां से स्टार्ट हुआ. फिर ड्राइवर के साथ ही चलाता, एंड आई वाज ड्राइविंग लाइक अ मैनियक दोस डेज. मतलब विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी
having to Dude, obviously, if your driver is telling you that you can take it up to 6,500 मतलब RPM. एक तो वो बात अलग है कि you know driving the car, the other aspect is that driving like a maniac on streets. हाँ. उस टाइम तो लकीली चलो सड़क भी थोड़ी बहुत खाली होती थी एंड कोई कैमराज नहीं होते थे या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग उठा के डाल नहीं सकता था. हाँ. बट अगर मैं वैसे देखूं तो बहुत लाइक अ मेनियक चलाता था. जिस तरह के सभी लोग अपनी वीडियोस डालते ना ऐसे zigzag करके, दैट वाज लाइक नॉर्मल फॉर मी. So, and driving a WagonR, you know, tall boy, high center of gravity and all that. So that made me learn a lot more things about the handling and the dynamics. Ki, हाँ, what is the tipping point for that car? So whatever cars I'm driving right now with the handling mods and all that, WagonR didn't have any handling mods up until 2012. That too had only stiffer shocks. Okay. And we put in Alto का 800 का springs, पुरानी वाली Alto F8 जो आती थी 2006, 7, 8 वाली मॉडल. And the shocks were the same. Shocks were WagonR का, stiffer shocks. Okay. ठीक है, I'll come to that part later on. So इस तरीके से मतलब मैंने सड़कों पे, फ्लाईओवर्स पे, अपना ये GIP वाला फ्लाईओवर नहीं है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, वहाँ पे मैं एपेक्स ले लेके मैंने सीखी गाड़ी चलाना. तो रेस ट्रैक तो था नहीं उस टाइम पे, कोई VIC वगैरह भी नहीं था, एक्सप्रेस वे भी नया नया था. वहाँ पे भी सीधी सड़क पे चलाना इज नॉट समथिंग, यू नो, एनीवन, not something that you would want to probably do with a WagonR. or rather मतलब personally I don't like feel, you know, it doesn't excite me driving in a straight line because any Tom, Dick and Harry can just press the accelerator and go straight. So it doesn't excite me. So and उस टाइम पे वो फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट आई थी 2008 में, अंडरग्लो, नियॉन्स एंड ऑल दैट. तो स्टार्टिंग पॉइंट वहीं पे था. ठीक है. Okay. छपरी मोड्स जिसे कहते हैं. साइड में वो रेड कलर के वाइनिल स्टिकर्स एंड ऑल, 6 स्पीकर, एक वूफर, एम्पलीफायर, काले शीशे, ठीक है, एक वो स्पॉइलर एंड ऑल दैट. तो जिस बंदे के पास मैं जाता था उसने कहा कि तुम्हारा एंड गोल क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं. तो कहता कि कुछ टारगेट रखो. अच्छा. मैंने कहा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मेरा टारगेट है कि उस टाइम पे वो सैंट्रो आती थी. सैंट्रो का इंजन अच्छा था, 1.1 था. तो मैंने कहा यार इसको हराएंगे. तो कहते ठीक है. तो हमने उस टाइम पे गाड़ी पे थोड़े मॉडिफिकेशन स्टार्ट किया इन द फॉर्म ऑफ एयर फिल्टर. In that time the WagonR had which engine? The 1.1 F10D. अच्छा, सेम कैपेसिटी का था. ओके. 1061 सीसी के आसपास था. ठीक है. ठीक. So I said we'll do and proceed this way. तो हमने स्टार्ट किया. 2009 में उसने मेरे को ऑटोक्रॉस में इंट्रोड्यूस कराया. अच्छा. ठीक है. ओके. So 2009 ऑटोक्रॉस was happening जहाँ पे अभी ऑटो एक्सपो होता है ना अपना ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट पे होता था. And the track was like very confusing and it was like a proper autocross track. आज के तरह ऑटोक्रॉस ट्रैक की तरह नहीं कि हाँ जी यहाँ से मुड़ना है यहाँ मुड़ना. इट्स लाइक आज के जो है हाईवे रन हो गया, बीच में कोन वगैरह डाल दिया. लाइक दोज वर द प्रॉपर डेज. सो व्हेन आई स्टार्टेड विथ द टफर ऑफ द ट्रैक्स, यू नो. सो आजकल के ट्रैक्स बहुत इजी लगते हैं उस मामले में मेरे को. एंड आई यूज्ड टू compete with far better drivers that time. There were not many, you know, imported गाड़ियां तो आती ही नहीं थी, ना के बराबर आती होंगी आजकल जितनी आती हैं. बट उस टाइम पे सो कॉल्ड ट्यून्ड कार्स ज्यादा, जैसे एस्टीम्स या फिर जेन्स विद 1300s एंड 1600s बहुत सारे आते थे. तो आई एंटर्ड द एमेच्योर स्टॉक कैटेगरी इन दैट टाइम 2009 में. आई केम 4th. अच्छा, WagonR में एक इशू ये होता था कि बिकॉज इट वाज अ टॉल बॉय, तो अगर हम उसमें फ्यूल कम चलाते थे ना, सो बिकॉज ऑफ द फ्यूल द टैंक स्लॉशिंग, वो कट मार देता था. तो फ्यूल नहीं आता था, सिर्फ एयर आता था. तो वो गाड़ी मतलब आगे नहीं जाती थी, तो फक 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 इस तरह से करती रहती थी. समझ गया. सो आई लॉस्ट आउट बाय half a second or 6/10 of a second from a podium. Okay. And who was the runners up? I mean, sorry, who was the guy on the podium? Which car was it? मेरे को बंदे का नाम भी याद है, वो सुमित मलूजा करके था. He was driving an Alto. Oh wow. Okay. And उस टाइम पे जो लोग फर्स्ट आते थे ना, they were all cheaters. हाँ. क्योंकि वो जेन में आते थे और उसमें 1300 सीसी और 1600 सीसी का इंजन डाल के आते थे और मुझे कोई आइडिया नहीं था. मैं लिटरली एक जीरो लेवल का आदमी था व्हेन इट केम टू. एंड उस टाइम पे स्क्रूटिनी का कुछ नहीं होता था भाई, कोई नहीं होता था. सब आंट भांट सब कुछ लेकर आ जाते थे. कोई लेवल ऑफ स्क्रूटिनी नहीं थी, कुछ नहीं था. मतलब खैर मेरे को तो पता भी नहीं था, क्योंकि मेरा तो कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं इसको कभी आगे परस्यू करूंगा. मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मजे के लिए था. राइट. कि सड़क पे भगा रहा हूँ, चलो यहाँ तो वहाँ चलो ठीक है. 2009 में 4th एमेच्योर स्टॉक से वापस आ गए.
2010 में फिर मैंने करी रेड डी हिमालय एज अ नेविगेटर इन एडवेंचर ट्रायल इन अ Okay. जिप्सी। सो 2010 में जब मैंने ऑटोक्रॉस में फिर से पार्टिसिपेट, अच्छा उस टाइम ऑटोक्रॉस मारुति सुजुकी ऑटोक्रॉस कराता था ये अपना नॉर्दर्न मोटर स्पोर्ट्स। दैट वाज एन एनुअल इवेंट ओनली Right. एंड दैट यूज्ड टू हैपन इन द मंथ ऑफ दिसंबर Right, I remember. हाँ. एंड इट वाज अ 2-3 डे इवेंट उस Right. टाइम पे। लॉट ऑफ फन, यू नो, एक दिन पहले आप आके अपना स्टिकर्स वगैरह ले लो, अपने बैंड्स वगैरह ले लो, सब कुछ ले लो, फिर 2 दिन तक इवेंट चलता रहता था। तो मतलब एक यू नो फन फ्रॉलिक इवेंट होता था। तो 2010 में क्या किया, जब मैंने रूल्स पढ़े, एक तो आजकल के लोग रूल्स पढ़ते नहीं है, बिना रूल्स पढ़े अपनी गाड़ियां तैयार कराने में लग जाते हैं। फिर जब कोई प्रोटेस्ट डलता है कुछ, हमें तो पता नहीं था। सो आई वुड अर्ज दैट ऑल द पार्टिसिपेंट्स शुड रीड द रूल्स एंड देन कम टू एन इवेंट। Definitely. सो व्हेन आई स्टडीड, तो उसमें लिखा था कि अगर आपकी कोई पोडियम आई है या टॉप 4 इस तरह से कुछ एक क्लॉज था, तो उसमें आपको प्रो में जाना है। और मेरा हर बारी से इंटेंशन ये था कि मेरे को अंधों में काड़ा राजा नहीं रहना है। आई वांटेड टू compete with the best. If I could, I would have chosen कि ठीक है मैं फिर से एमेच्योर, उस टाइम एमेच्योर मॉड क्लास भी होती थी, तो एमेच्योर मॉड में चला जाता मैं 2010 में, क्योंकि उसमें मैंने हेडर भी डाल दिया था उस टाइम पे, एंड आई हैड दैट बॉडी किट ऑफ द सुजुकी सोलियो। Right. सो आई सेड कि नहीं, मैं प्रो मॉड में ही जाऊंगा, प्रो ड्राइवर्स के साथ और उन सब के साथ। सो वहां गया, वहां पे मैं क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। मेरे को पता चल गया कि भाई मेरी क्या स्टैंडिंग है। ऑफ कोर्स आई वाज ड्राइविंग अ वैगनआर, एंड वहां पे कोई वैगनआर लेकर भी नहीं आता था। तो ऑर्गेनाइजर भी कहते थे कि भाई तू वापस आ जाइयो 4 पहियों पे। मैंने कहा डोंट वरी सर। 2011 अगेन आई वेंट। अब वहां पे टाइमिंग एरर के चक्कर में तो मैं क्वालिफाई कर गया, लेकिन उसके बाद जब फाइनल्स होते थे ना, तो ये लोग ट्रैक लेआउट चेंज करते थे। Okay. मैं चला गया जिमखाना मलाई टिक्का खाने के लिए किसी के साथ, ठीक है। वापस आया, मैंने कहा ट्रैक ही चेंज। बट ऐसे मतलब इवेंट के बीच में ट्रैक चेंज कर नहीं, देते हैं? बोलते थे कि Okay, जब okay. सारे क्वालिफाइंग रन हो जाएंगे तो फाइनल्स के लिए हम ट्रैक चेंज करेंगे। Okay. एक ट्रैक Okay. वॉक भी देते थे, हाँ. वो मैंने मिस कर दिया था चिकन मलाई टिक्का खाने के चक्कर में। Okay. वहां चला गया, जब वापस आया तो जब हैंड ब्रेक टर्न मारनी पड़ गई, मैंने कहा यार ये क्या, गाड़ी रुक गई मेरी, रिवर्स करना पड़ा। मैंने कहा गया टाइम, चलो कोई बात नहीं। 2011 मतलब, और ये तब है when all the other guys in my class were cheating, driving Zens with Esteem and Baleno engines and modified engines. ठीक है, so technically they were not allowed. Right. But I also didn't have any idea, nor I had the intention of pursuing it as you know कि कब तक जाएगा। ये साल में एक बार इवेंट आता था मजे के लिए, मैं चला। सरप्राइज मारुति का इवेंट ऐसा हुआ है एंड स्क्रूटिनी का ज्यादा कुछ रखा नहीं था इन लोगों ने इस तरीके से। अदरवाइज सब जैसे रेड वगैरह है, डीएस है, तो बहुत सॉलिड स्क्रूटिनी होती है उसके अंदर। यार ऑटोक्रॉस उस टाइम पे क्या था, ऑटोक्रॉस कैन नॉट बी, इट्स लाइक अ ग्रास रूट काइंड ऑफ स्टफ। रेड एंड ऑल इज सीरियस स्टफ, राइट? तो एंड मतलब अगर किसी को प्रोटेस्ट डालना भी था तो मतलब कॉम्पिटिटर को भी खुद पता होना चाहिए था ना। मतलब मैं भी तो ऐसे कोई रूल, मैं तो अपना तरफ से सेफ करने आता था कि ठीक है, बट मैं कभी इस इंटेंशन से नहीं आता था कि भाई मैं उसके ऊपर प्रोटेस्ट डालूंगा या यू नो उंगली करूंगा कि नहीं भाई। मेरे को अपनी ड्राइविंग स्किल्स की बदौलत जीतना था। आई डिडंट वांट टू पुल समवन डाउन एंड कम अप, यू नो, दैट वाज नॉट माय इंटेंशन। करेक्ट। हां, 2012 में क्या हुआ, देन आई वेंट टू वेल्लोर फॉर स्टडीज, मास्टर्स। यू हैव योर एजुकेशन इन इंजीनियरिंग ना? या ओके। सो मास्टर्स करने के लिए मैं ऑटोमोटिव में वेल्लोर चला गया था। Okay. सो 2012 का इवेंट के टाइम पे आई टोल्ड मॉम दैट यू सेंड द कार हियर, वील गेट इट डन एट FRK बैंगलोर। So from there it started the FRK journey. Okay, because I remember FRK you had put up some posts for your Swift, not for the WagonR. WagonR was the car which actually started the FRK journey. Okay. In 2012. Okay. ठीक है। And 2015 से हमने वो स्विफ्ट जो टर्बो कैट या काली बिल्ली उस टाइम पे होती थी, वो 2015 से स्टार्ट हुई थी। Okay. 2012 में हमने वैगनआर वहाँ भेजी। मैंने उनको कुछ और बोला था करने को, उन्होंने अपने हिसाब से कर दिया कुछ और। What was it? What was the difference? I told that I need these cams and you know ECU and all that blah blah. You had given specifically. हाँ, I told them कि मेरे को ही करना है। They didn't do the cams, they didn't do the ECU. They told that they did a gearbox, they did the suspension,
Okay. They did some engine work. Okay. तो मेरे को गियर रेशियोज के बारे में उस तक कुछ नहीं पता था उस टाइम पे. ठीक है. उन्होंने बोला तू गाड़ी चला के लेकर आ. I was till that time I was the kind of guy doing that 0 to 100 things. Right. कि 0 to 100 कितना है, 0 to 100 कितना है. Right. तो मैंने वो भी चेक किया. मैंने कहा यार दिस इज कमिंग ऑलमोस्ट सिमिलर, टैड बिट फास्टर, बट कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. बट जब मैं गाड़ी स्ट्रीट में चलाया ना, मैंने सेकंड से थर्ड गियर डाला, तो यूजुअली होता है ना कि स्पीड रिडक्शन होती है. अरे भाई साहब वो आरपीएम इतना कोई ड्रॉप ही नहीं, वो गाड़ी और आगे बढ़ने लग गई. मैंने कहा ये क्या किया इन्होंने. रेशियोज के साथ उन्होंने रेशियोज के साथ खिलवाड़ किया. फिर गाड़ी जब दिल्ली में वापस मंगाया, छुट्टी के टाइम पे मैं ही आया, तो अपना सेक्टर 18 वाला वो हाथी पार्क नहीं है, तो जब आप इधर से आते हो, क्या कहते हैं, एक्सप्रेस वे से सीधा आते हैं, एंड आप यू टेक दैट लेफ्ट एंड राइट ओवर व्हिच exits towards the center stage wave वाला जो right hand right. I was taking that as around 90-95 that day. Okay. Flat. Okay. मैंने कहा अब ये गाड़ी competitive है. हाँ. तो जब competitive है, 2012 में ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट से द इवेंट शिफ्टेड टू BIC का ग्रैंड प्लाजा, which is ये जो ग्रैंड स्टैंड के बैक साइड पे था. हाँ, समझ गया. ठीक है, समझ गया. वहां पे I beat the same guys driving the Zens with steam engines. Okay. And the there I gearbox came in the difference. limelight कि हाँ, and I came first in that. But उसमें भी क्या हुआ था कि मैंने एक पॉट के अंदर अपनी गाड़ी मार दी थी, मेरा चिमटा टूट गया था. ओह. Okay. And उसमें क्या हुआ फिर, somehow I still came first. जो second संयम था अपना, संयम त्यागी. अच्छा. स्विफ्ट नहीं, उसके पास थी मारुति 800. Okay. With the F10A engine swap and 5 speed and all. हाँ. Built by हमारे Right. Speed Sport. Phil. हाँ, समझ Phil. गया. ठीक है, तो उस टाइम उसके साथ मेरा कंपटीशन ज्यादा होता था. हाँ. तो वो हार गया उस टाइम पे. तो 2012 का हो गया. फिर मैंने कहा 2013 में मैंने कहा अब स्विफ्ट चलाएंगे. स्विफ्ट मैंने स्टॉक चलाई. ठीक है, प्रो स्टॉक में 2013 प्रो स्टॉक में एक क्लास में मैं सेकंड आ गया था. तो मैंने कहा 2014 के इवेंट में मैं प्रो स्टॉक में सब में फर्स्ट आना चाहता हूँ. वही हुआ. उस टाइम रूल्स रेगुलेशंस बहुत अलग थे आज के कंपैरिजन में. उस टाइम फॉरेन इंजन्स भी अलाउड थे, आप GTIs वगैरह चला सकते थे, एंड अगर आपने अपनी गाड़ी में हेडर भी डाल दिया तो भी आप मॉड क्लास में हो गए. ये आप you're talking about 2014. Okay, 14-15. हाँ. So अगर मेरे को मॉड क्लास में आना था ना, मॉड क्लास वाज up to 1400, above like that, up to 1650. So I said कि my Swift is a 1300cc. You bought the Swift that time only, is it? No, it came in 2009. अच्छा. And it was a Swift Glam, VXI Glam. Okay. उसकी बड़ी फनी स्टोरी ये है कि हम स्विफ्ट लेने गए थे, फिर उसी टाइम पे उसी साल फिएट पुंटो आई थी, लॉन्च हुई थी. तो मैं पुंटो देखने गया. वहाँ पे 1.4 पेट्रोल इंजन भी आता था उसमें. मैंने देखा, मैंने कहा गाड़ी देखने में भी अच्छी है, अलग भी है. वी डोंट वांट टू बाय मारुति अगेन. फिएट वालों के साथ डीलरशिप के साथ कुछ बनी नहीं, तो मारुति की हमने वो स्विफ्ट ही उठा लिया. अच्छा हुआ उठा लिया. आज वो टर्बो कैट और उसके नाम से जानी जाती है. तो हमने जब वो गाड़ी उठाई तो obviously dad used to go port in that car and all that. I didn't want to modify it till the time we had a new car. Right, understood. Completely for the quote. Fair enough. So that came in 2015, the Corolla Altis. Right. Okay. So till that time I didn't modify it apart from the headers. That's it. And a very subtle exhaust system. So 2014 तक हमने वो किया and I said कि ठीक है, अब सारी क्लासेस मैं खत्म कर चुका हूँ. अब 2015 के लिए था कि मैं क्या करूं. अगर तो मैंने उसमें हेडर डाल दिया, क्योंकि अप अंटिल 2014 इट वाज ऑल स्टॉक क्लास. 2015 अगर मैंने हेडर डाल दिया तो मैं मॉडिफाइड में चले जाऊंगा. एंड वहां पे अगर कोई टर्बो चार्ज भी करके आ रहा है तो भी मैं उसी में जाऊंगा. एंड उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं होता था उस टाइम पे. Okay, what is the multiplication factor? So now, like as per the FIA also, any petrol engine car will have a multiplication factor of 1.7 times the CC, original CC. Okay. Just best example is a 1 liter TSI. Okay. So it's a 999 or 998 cc. You multiply that by 1.7. That is your effective engine capacity. Okay. So that car cannot compete under the 1 liter class. Yeah. Up to 1400 class. It has to go above 1600 or up to 1700 like that. Okay. ठीक है. And for a diesel it has to be 1.5.
So Okay. these things didn't exist that time. Hmm. So it was all the more, gruesome battle and मतलब बहुत amazing fun आता था. मतलब अभी जैसे कि literally almost 50% of the field or 60% of the field is coming home with a trophy ना, उस टाइम पे ऐसे नहीं होता था. उस टाइम पे there was real competition and the fight was like अरे यार कौन क्या कर रहा है, कितना टाइम आ रहा है, वो मजा आता था. Because अब I think वो भी है कि भी I mean with all due respect ये है कि अब इवेंट जो ऑर्गेनाइजर्स भी होते हैं they want more people to come and participate Obviously. also. तो उनको ये है कि यार जो आए कम से कम कुछ तो लेके जाए, वो जीत के कुछ तो जीत के जाए, that sense of achievement अगले साल फिर से आएगा. हाँ. So उस केस में क्या था 2015 में we were like should we build a NA car or should we go turbocharged? Okay. Because up until then some other garage was winning. And who is this we? V is me and FRK. Okay, you and FRK. Because the car had to go there. Car had to go there. ठीक है. ठीक. So I said कि सर आप बताओ क्या करना है. So Fazil sir told me कि we'll go turbocharged. Okay. मैंने कहा ठीक है. कभी turbocharged चलाई नहीं, कुछ चलाया नहीं, LSD नहीं चलाया. तो वो वहाँ पे मैंने कहा LSD भी डालो, coilover भी डालो, सब कुछ हुआ उसमें. और 2015 में I came overall fastest. मतलब I was beat. I myself was my own competition. There was nobody else was even I close remember, to it. and I think even on track, even on the full BIC track, you had eaten up some of the good German cars also. हाँ. I remember that very वो भी clearly. हाँ. वो अभी भी है. वो भी है. तो उसमें क्या हुआ कि that time 1300 या 1600 Esteems आती थी, twin cams Esteems, GTIs आती थी, Polo थी, 1.6 GT TDI and all that. तो ये सारे competition के साथ मतलब I have evolved, so I know exactly what was the real competition. ठीक है, similar cars, if not मतलब there was no imported car that time. I mean there was no Porsche or there was no BMs or something like that. So इस तरह से हुआ, and from 2015 onwards फिर ये एनुअल इवेंट चलता रहा इनका 2019 तक. All the years I only came overall. Okay. In that Swift only. And उस टाइम 2015 में it was a 1300cc turbocharged. फिर 16 में हमने उसको 1600cc कर दी थी turbocharged. और वो over the period of time वो 1600 में ही हम खेलते गए, evolve करते गए. Right now it is back to 1300. अच्छा, you went down. I went back to 1300. And why is that? Because 1600 के तो parts की availability थी, plus 1300 के parts भी और ज़्यादा available हैं. Okay. And I can compete in probably 1 or 2 more categories. But पिछले 1-1.25 साल से वो गाड़ी किसी ने देखी नहीं है. It hasn't come to any event. The last event the TurboCat participated was the India Speed Fest 2022 में जो हुआ था, NM ने जो organize कराया था. Overall उसमें मैं जीता था, तो उसके बाद से the गाड़ी has been kind of underground. Because of the engine swap? No, not because of the engine swap. So in that event, I think there was a drive shaft failure or something which happened. Okay. ठीक है. Sorry, the LSD bearing का था. Okay. ठीक है. वो टूट के और वो जो ऑयल सील था, वो उसको वहां से ऑयल ड्रिप करे जा रहा था. So I was like, I had 3 runs. और मेरा कंपटीशन उस टाइम करण की जैज के साथ चल रहा था. Right. ठीक है, K24. So हम दोनों ही आपस में लड़ रहे थे. वो मतलब वो एक क्लासिक बैटल था. मतलब मैं आगे जा रहा हूँ, अगले रन में वो उसने आगे किया, फिर मैंने किया, फिर उसने किया. Okay. लास्ट रन ऑफ द डे पे मेरा था, मैंने उसमें ओवरऑल मार दिया था. और मतलब ये था कि मुझे पता था कि गाड़ी स्लो भी होते जा रही है, वो कब उसका तेल पूरा निकल जाए कुछ नहीं आता, बिकॉज इट वाज जस्ट ड्रिपिंग ऑयल एवरी टाइम. जब मैं इवेंट खत्म करके वापस आ रहा था तो तेल अच्छा खासा लीक करने लग गया था. Somehow I managed to get the car back home. And then when we opened, then बहुत सारी चीजें निकली उसमें से क्योंकि that engine has been doing since like 3.5 years. Same. We just used to change the oil and go to the track and all. We didn't do anything separately कि अब ऐसा कुछ आ रहा है तो अब इसमें हम बहुत सारी changes करने वाले हैं. हम ऐसा कभी कुछ नहीं करते थे. तो ये सीन था. तो अभी वो गाड़ी पिछले 1-1.25 साल से कहीं आई नहीं है इवेंट पे. आएगी. I'm sure it will come back with a bigger bang probably. देखो क्या होता है.